بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کرام کا ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تمام ضروری اور آنے والے تمام ممکنہ سوالات کے پیش نظر اسم کے تعلق سے مطالعہ کیا تھا اور ساتھ ہی اس میں معرفہ اور اس کے اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم اسم میں نکرہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ کسی بھی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور کسی بھی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اب ہم آپ کو اسم نکرہ کی چند اقسام کے متعلق بتاتے ہیں۔ اسم نکرہ کی مشہور اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 اسم حالیہ، نمبر 5 اسم معاوضہ، نمبر 6 اسم صفت، نمبر 7 اسم حاصل مصدر۔ سب سے پہلے اسم ذات کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسری شے سے الگ سمجھی جائے۔ اسم ذات اسے کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہم ایک چیز کو دوسرے چیز سے الگ طریقے سے پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر دن، رات، بچہ، مرد وغیرہ وغیرہ۔ اسم ذات کے بھی کچھ اقسام ہیں۔ ماہرین قواعد نے اسم ذات کی جو اقسام بتائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ اسم ذات کے اقسام میں نمبر 1 اسم جنس، نمبر 2 اسم ظرف، نمبر 3 اسم صوت، نمبر 4 اسم آلہ، نمبر 5 اسم مصغر یا تصغیر، نمبر 6 اسم مکبر اور نمبر 7 اسم جمع۔ یہ نام خوب یاد رکھنے کے لیے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر مقابلہ جاتی امتحانات میں اس کی اسم ذات کے اقسام کے تعلق سے یا اسم نکرہ کے اقسام کے تعلق سے تعریف پوچھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسم جنس کو پڑھتے ہیں۔ جو الفاظ کسی چیز کی جنس کا تعین کریں انہیں اسم جنس کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ جس سے پتہ چلے کہ یہ کون سا جنس ہے اس کو ہم اسم جنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوا، گھوڑا، بکری، مرغی، طوطا وغیرہ۔ اس سے ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوا، گھوڑا، بکری، مرغی، طوطا کون سے جنس میں ہیں۔ نمبر 2 اسم ظرف۔ اسم ظرف کے معنی برتن کے بھی ہیں، ظرف کے معنی برتن کے بھی ہیں اور گنجائش کے بھی۔ اسم ظرف وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی دے۔ اسم ظرف وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی بتائے۔ مثلا مسجد، اسکول، باغ، صبح، شام، دن، رات وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ سے ہم جگہ یا وقت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اسم ظرف کہلاتے ہیں۔ اسم ظرف کے بھی کچھ اقسام ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اسم ظرف کے صرف 2 اقسام ہیں، اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مکان وہ اسم جو کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا اسم جس میں مکان شامل ہو، مطلب جگہ یا مقام بتایا جائے، ایسے اسم کو ہم اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور، اسکول، مسجد، کمرہ، ہسپتال، سڑک، ڈاکخانہ وغیرہ۔ جبکہ اسم ظرف زمان یہ وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، اسم ظرف زمان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح، شام، کل، پرسوں، دوپہر، منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسم ظرف زمان ہے۔ اب نمبر 3 جو ہم نے پڑھا اسم صوت۔ ابھی ہم اسم ذات کے اقسام پر ہیں۔ اسم صوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں۔ پس جو کلمہ کسی انسان، حیوان یا بے جان اسم کی آواز کو ظاہر کرے اسم صوت کہلاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی آواز کو اسم صوت کہتے ہیں، جو چاہے وہ کسی انسان کا ہو، حیوان کا ہو یا بے جان چیزوں کی آواز ہو، اسم صوت کہلاتا ہے۔ مثلا چوں چوں، کائیں کائیں، میں،
टिक टिक, भों भों, छम छम, धक धक वगैरह वगैरह। ये इसमें साउथ है। नंबर 4 इसमें आला। आला औजार का नाम है या हथियार का नाम है। आला का मतलब ही औजार या हथियार के होते हैं, इसलिए कोई किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिसमें औजार या हथियार का नाम आए वो इसमें आला कहलाती है। मसलन सुई, हथौड़ा, रेती, कलम, तोप, रिंदा, चाकू वगैरह वगैरह, ये इसमें आला की मिसाल है। अब एक सवाल जो अक्सर मुकाबला जाती इम्तहानात में आ रहे हैं वो है इसमें आला बनाने के कायदे। आप किसी अल्फाज से कैसे वो दूसरे अल्फाज को बनाएंगे उसके कुछ कायदे भी हैं। तो इसमें आला बनाने के कायदे, नंबर 1, उर्दू ज़बान में कुछ इसमें आला मसदर से बनते हैं। मसलन इसमें आला मसदर से बनते हैं। मसलन छांटा, छानना से छलनी, फूंकना से फूकनी, झूलना से झूला, बेलना से बेलन, झाड़ना से झाड़न वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मिसाल के तौर पर याद रखने की हैं। नंबर 2, बाज़ इस्माए आला इसमों में तब्दील करके बना लिए जाते हैं। बाज़ कुछ ऐसे इस्माए आला हैं जिसमें इसमों में तब्दील करके बना लिए जाते हैं, जैसे घड़ी से घड़ियाल, दांत से दातन, नाक से नकेल। नंबर 3, अरबी और फ़ारसी के इस्माए आला भी उर्दू में इस्तेमाल है। अरबी और फ़ारसी के इस्माए आला भी उर्दू में मुस्तअमल होते हैं, जैसे मज़राब, मस्तर, मिक़राज़, मीज़ान, दस्त पनाह, कलम तराश, शीशा और कफ़गीर वगैरह वगैरह। ये सब फ़ारसी और अरबी के अल्फाज हैं लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चंद इस्माए आला हैं जिनके कायदे बताए गए। अब आइए इसमें मुस्सग़र या तस्ग़ीर। इसमें मुस्सग़र या तस्ग़ीर, मुस्सग़र या तस्ग़ीर बड़ी चीज़ को छोटा जाहिर करने के लिए। कोई भी बड़ी चीज़ हो उसको अगर हम छोटे तौर पर इस्तेमाल छोटे नाम में ज़ाहिर करते हैं तो इसमें मुस्सग़र या तस्ग़ीर कहलाता है। जैसे डब्बा से डिबिया, पंख से पंखड़ी, बाग से बागीचा। यहाँ डब्बा बड़ी चीज़ का नाम है जबकि डिबिया छोटी चीज़ का नाम है। पंख बड़ी चीज़ का नाम है जबकि पंखड़ी छोटी होती है। बाग बड़े होती हैं जबकि बागीचा छोटी होती है। ये इसमें मुस्सग़र या तस्ग़ीर है। आजकल मुकाबला जाती इम्तिहान में इसमें मुस्सग़र या तस्ग़ीर बनाने के ताल्लुक़ से भी सवालात आते हैं। हम यहाँ चंद कायदे पढ़ते हैं इसमें मुस्सग़र या तस्ग़ीर बनाने के कायदे। नंबर 1, इसम के आखिर में याय मारूफ माने ये लगाकर इसमें मुकब्बर से मुस्सग़र बनाते हैं। पहाड़ से पहाड़ी, नगर से नगरी, बुर्ज से बुर्ज। नंबर 2, इसम के आखिरी हुरूफ को ये से बदल देते हैं। मसलन रस्सा से रस्सी, झोपड़ा से झोपड़ी, टोकरा से टोकरी। नंबर 3, इसम के आखिर में रे अलीफ ड़ा या रे ये री लगाकर इसमें मुस्सग़र बनाते हैं। मसलन दुख से दुखड़ा, मुख से मुखड़ा, पलंग से पलंगड़ी। नंबर 4, इसम के आखिर में ये अलीफ या लगाकर भी हम मुस्सग़र बनाते हैं। मसलन डिब्बा से डिबिया, पंखा से पंखिया, हांडी से हंडिया। नंबर 5, इसम के आखिर में चे या ची लगाकर भी मुस्सग़र बनाते हैं। मसलन संदूक से संदूकची, बाग से बागीचा, देग से देगची। ये चीज़ें हमारे यहाँ अक्सर बेशतर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मुकब्बर छोटी चीज़ को बड़ा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे इसम को इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे पगड़ी से पगड़ा, बात से बतंगड़, गठरी से गट्ठर, तीर से शहतीर। इसमें मुकब्बर बनाने के भी कुछ कायदे हैं जो अक्सर मुकाबला जाती इम्तहानात में पूछे जाते हैं। नंबर 1, इसम का आखिरी हरफ ये को दूर करके हम इसको बनाते हैं। जैसे टोपी से टोप। इसम से पहले महा लगा करके भी बनाते हैं, जैसे महाराजा, महारानी। इसम से पहले शाह या शह लगाकर, राह, शाहिरा। ये इसमें मुकब्बर बनाने के कायदे हैं। नंबर 7, इसमें जमा। ऐसे अल्फाज जो वाहिद की मफ़हूम में जमा को ज़ाहिर करें इसमें जमा कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज हैं जो सिंगुलर को प्लूरल बनाकर जाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कतार, जमात, गिरोह, फ़ौज, पार्टी, जलसा। कतार कहने से, जमात कहने से या कि कोई गिरोह कहने से, फ़ौज कहने से हम ये समझ जाते हैं कि ये इसमें जमा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें जमा है। और ऐसे अल्फाज जो वाहिद की भी मफ़हूम को
जमा में मफ़हूम में जमा को ज़ाहिर करें, इसमें जमा कहलाते हैं। अब यहाँ जमा और इसमें जमा का फ़र्क, जमा और इसमें जमा में बुनियादी फ़र्क यह है कि जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है। जमा और इसमें जमा में बुनियादी फ़र्क क्या है कि जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है। मसलन इबारात का वाहिद इबारत और मदारिस का वाहिद मदरसा होता है। इबारत वाहिद है और इबारत जमा है, मदारिस जमा है और वाहिद मदरसा है उसका। लेकिन इसमें जमा का वाहिद नहीं होता और उसका फ़ेल हमेशा वाहिद आता है। इसमें जमा जो होता है, इसमें जमा का कोई वाहिद नहीं होता है और उसका फ़ेल हमेशा वाहिद ही आता है, जैसे काफ़िला जा रहा है। नंबर 3, अलबत्ता वाहिद की तरह इसमें जमा की भी जमा बना लेते हैं, इस सूरत में फ़ेल भी जमा आएगा। मसलन महफिल से महफिल, मजलिस से मजालिस वगैरह वगैरह। अब आइए इसमें फ़ाइल को पढ़ते हैं। ये इसमें फ़ाइल, इसम नॉन को कहते हैं और फ़ाइल वर्ब को कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले के लिए इस्तेमाल हो मगर वो काम करने वाले शख्स का असली नाम ना हो, इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे करने वाला, अदाकार, भिखारी, मज़दूर वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर जीतने वाले खिलाड़ी को इनाम मिला, माली पौधों की काट छांट कर रहा है। यहाँ पे खिलाड़ी और माली ये इसमें फ़ाइल हैं जो असल इसम की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा इसम जिसमें किसी का नाम ना हो लेकिन जो वो काम कर रहा है उस काम के ताल्लुक़ से उसके बारे में बयान किया जा रहा है, ये इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसमें फ़ाइल के भी चंद अक़साम हैं, 2 अक़साम हैं। नंबर, इसमें फ़ाइल क़यासी और इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल क़यासी और इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल क़यासी सिर्फ मज़दर की निस्बत से बनने वाले इसमों को इसमें फ़ाइल क़यासी कहा जाता है। जैसे खाने वाला, पीने वाला, दौड़ने वाली, पढ़ने वाला, पढ़ने वाले वगैरह वगैरह। ये ऐसे इसमें हैं जो क़यासी हैं, जो खाना पीना और दौड़ना पढ़ना से बनते हैं। ये ऐसे इसमें क़यासी, जैसे खाना से खाने वाला, पीना से पीने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाले और पढ़ना से पढ़ने वाले वगैरह वगैरह। दूसरा किस्म है इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल समाई आमतौर पर बेकायदा होते हैं लेकिन उनका बराह रास्त ताल्लुक़ मस्दर से नहीं होता। अहले ज़ुबान जिस तरह मस्दर से इसम बना ले उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये अहले ज़ुबान उर्दू ज़बान के मोतबर हज़रात जो जिस तरह उसको इस्तेमाल करें, जिस तरह उनके यहाँ मुस्तामिल है, जैसे मस्दर से वो इसम बना लेते हैं, तो ये इसमें फ़ाइल समाई है। जैसे कोई चीज़ रखने वाला को रखवाला कहते हैं, पूजने वाले को पुजारी कहते हैं, लूटने वाले को लुटेरा कहते हैं, पहरा देने वाले को पहरेदार कहते हैं। ये चीज़ें इसमें फ़ाइल समाई है। अब फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में फ़र्क जानते हैं। फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में क्या फ़र्क है? इसमें फ़ाइल या तो मुश्तक़ मस्दर से बना हुआ होता है, जैसा सुनना से सुनने वाला, या उसके साथ कोई फ़ाइली अलामत लगी होती है। मसलन गाड़ी बान में बान फ़ाइली अलामत के तौर पर आता है। उसके बरक्स फ़ाइल हमेशा जामिद और किसी काम करने वाले का नाम होता है। मसलन असलम ने सुना, इस जुमले में असलम फ़ाइल है लेकिन सुना फ़ेल की निस्बत से इसमें फ़ाइल को सुनने वाला कहा जाए तो ये इसमें फ़ाइल होगा। यहाँ बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं और इसमें फ़ाइल काम करने वाले शख्स को जिस अल्फाज से तशबीह दी जाए। नंबर 3, इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल वो इसम जो किसी ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़ई हो चुका हो, या वो इसम जो किसी मफ़ऊल की बजाय इस्तेमाल हो, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। 2 बातें हैं यहाँ। ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल है इसमें मफ़ऊल, ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ के लिए जिस पर कोई काम हुआ है, या वो इसम जो किसी मफ़ऊल की बजाय इस्तेमाल हो रहा हो, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। मसलन लिखा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, आज़माए हुए वगैरह वगैरह। इसमें मफ़ऊल के अक़साम मुंदाजातल अक़साम है। नंबर 1, इसमें मफ़ऊल क़यासी। मस्दर से बनने वाले इसमें मफ़ऊल को इसमें मफ़ऊल क़यासी कहते हैं। मसलन लिखना से लिखा हुआ, देखना से देखा हुआ, भागना से भागा हुआ। दूसरा इसमें मफ़ऊल समाई, वो इसम जो इस मफ़ऊल से मस्दर से किसी ख़ास कायदे के मुताबिक न बने उसे इसमें मफ़ऊल समाई कहा जाता है। मसलन कंवारा, दिल जला, भगोड़ा, बेहता वगैरह वगैरह। इसमें मफ़ऊल बनाने के कायदे हैं। मस्दर की इलामत
ना दूर करके उसकी जगह अलिफ लगाते हैं। फिर आगे हुआ बढ़ा देते हैं, मसलन सुनना से सुना हुआ, भागना से भागा हुआ। इससे हम आसानी से इसम मफ़ूल बनाते हैं। फ़ारसी के बहुत से ऐसे अस्मा मफ़ूल उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और वो फ़ारसी माजी मुतलक के आखिर में हे लगाने से बनते हैं, जैसे मुर्दा, शुनिदा, आज़मुदा, सोख्ता, आमोख्ता, दीदा, अंदोख्ता। मफ़ूल की वज़न पर आने वाले अरबी के बहुत से इसमें मफ़ूल भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, मसलन मज़लूम, मकतूब, मकतूल, मखलूक, मसजूद वगैरह। मफ़ूल और इसमें मफ़ूल में फ़र्क को पढ़ते हैं। इसमें फ़ाइल की तरह इसमें मफ़ूल भी मज़दर से बनता है या उसके साथ कोई मफ़ूल की अलामत लगी होती है, लेकिन मफ़ूल मज़दर से नहीं बनाया जाता और आम तौर पर ये किसी शख्स या चीज़ का नाम होता है। दूसरे लफ्ज़ों में फ़ेल की मुनासिबत से मफ़ूल को जो नाम दिया जाए वो इसमें मफ़ूल कहलाता है। मसलन हमने गाना सुना, इस जुमले में गाना मफ़ूल है, लेकिन सुना फ़ेल की निस्बत से गाना मफ़ूल को सुना हुआ कहा जाए तो इस सूरत में इसमें मफ़ूल होगा। नंबर 4, इसमें हालिया। वो अल्फाज जो किसी दूसरे इस्म की हालत को ज़ाहिर करें इसमें हालिया कहलाते हैं। किसी भी दूसरे इस्म की हालत को ज़ाहिर करने वाले इस्म को हम इसमें हालिया कहते हैं। बहुत आसान सा ये इसकी तारीफ़ है। और जिस इस्म की हालत ज़ाहिर हो उसे ज़ुल हाल यानी हाल वाला कहते हैं। मसलन बच्ची रोते रोते सो गई है, इस जुमले में रोते रोते इसमें हालिया है और बच्ची ज़ुल हाल है। इसमें हालिया बनाने के कायदे भी हैं। मज़दर की अलामत ना दूर करके उसकी जगह ता ती ते लगाकर आखिर में हुआ हुए हुई बढ़ा देते हैं। मसलन हंसना से हंसता हुआ, हंसती से हंसती हुई से हंसते हुए। अगर ता ती ते की अलामत दोबार आए फिर हुआ हुई और हुए नहीं लगाते, मसलन रोते रोते, हंसती हंसती, टहलता टहलता। ये इसमें हालिया बनाने के कायदे हैं। नंबर 5, इसमें मुआवजा। मुआवजा मतलब उजरत। मुआवजा किसी काम को करने के बाद हम अगर किसी मज़दूर से कोई काम कराते हैं और उसको कुछ पैसा देते हैं, कुछ उसके बदले देते हैं, तो ये उसका मुआवजा होता है। ऐसे अल्फाज जो किसी काम की उजरत या मुआवजा को ज़ाहिर करें इसमें मुआवजा कहलाते हैं। मसलन इस कपड़े की सिलाई क्या है, गंदम की पिसाई अदा कर दो, कपड़ों की धुलाई धोबी को दे दो, खाने की पकवाई अकरम को अदा कर दो। यहाँ पे मुंदरजा वाला मिसालों में पिसाई, धुलाई, पकवाई और सिलाई वगैरह ये सब इसमें मुआवजा है। ऐसे अल्फाज इसमें मुआवजा कहलाते हैं। इसमें मुआवजा को बनाने के भी कुछ कायदे हैं। मुतादी इसमें मुआवजा बनाने के लिए मुतादी मस्दर का ना दूर करके आखिर में ई लगा देने से इसमें मुआवजा बन जाता है। मसलन सिलाना से सिलाई, पकाना से पकवाई और धुलाना से धुलाई। ये इसमें मुआवजा बनाने के लिए कायदे हैं। इसमें सिफत की तारीफ़। इसमें सिफत से मुराद ही है किसी चीज़ की खूबी, खामी, हालत, कैफियत वगैरह वगैरह। यहाँ इसमें सिफत इसमें नकरा की ही एक किस्म है। ऐसे इस्म जो किसी शख्स या किसी चीज़ के वस्फ, हालत, खुसूसियत या कैफियत को ज़ाहिर करते हैं उन्हें इसमें सिफत कहते हैं। मुंदरजा जुमलों को गौर से पढ़ेंगे। शेर बहादुर जानवर है, गुलाब के फूल सुर्ख हैं, इस बाग के आम बहुत मीठे हैं, अकबर बड़ा भाई है और असगर छोटा, लोमड़ी चालाक जानवर है, हमें अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए। ऊपर लिखे गए जुमलों में बहादुर, सुर्ख, मीठे, बड़े, छोटे, चालाक, अच्छे, बुरे, किसी शख्स की ये चीज़ की खूबी, हालत, खुसूसियत और कैफियत का पता चल रहा है, इसलिए ये इसमें सिफत कहलाता है। इसमें मौसूफ जिसमें किसी शख्स या चीज़ का वस्फ बयान किया गया हो उसे इसमें मौसूफ कहलाता है। शेर बहादुर है, गुलाब के फूल सुर्ख हैं, इस बाग के आम बहुत मीठे हैं, अकबर बड़ा भाई है और असगर छोटा, लोमड़ी चालाक जानवर है, हमें अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए। इन जुमलों में शेर, गुलाब, आम, अकबर, असगर, लोमड़ी और लोगों
اس میں موصوف کہلاتے ہیں۔ اس میں صفت کے اقسام مندرجہ ذیل اقسام اس میں صفت کے ہیں۔ نمبر 1 اس میں صفت ذاتی، صفت تفضیلی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ یہ 5 اقسام صفت اس میں صفت کے ہیں۔ صفت ذاتی، صفت ذاتی وہ اسم صفت ہے جو موصوف کے متعلق اس کی کوئی ذاتی صفت بتائے۔ مثلا اسلم شریف لڑکا ہے، اکبر بہت نیڈر لڑکا ہے، ساجدہ ایک ہنسمکھ لڑکی ہے۔ ان جملوں میں شریف، نیڈر اور ہنسمکھ یہ سب افراد کی صفات ذاتی ہیں، اور صفت ذاتی اور موصوف ملتے ہیں تو مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ مثلا اوپر دیے گئے جملے میں شریف لڑکا، نیڈر لڑکا، ہنسمکھ لڑکی یہ مرکب توصیفی ہیں۔ نمبر 2 صفت تفضیلی۔ صفت تفضیلی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 تفضیل نفسی، بے تفضیلی بعض، اور نمبر ج تفضیلی کل۔ تفضیل نفسی خالدہ ذہین ہے، تفضیل بعض رابعہ خالدہ سے ذہین ہے، اور تفضیل کل نفیسہ سب سے ذہین ہے۔ یہاں پر آپ گڈ، بیٹر اور بیسٹ کو ذہن میں رکھیں کہ تفضیل نفسی خالدہ ذہین ہے، یعنی کہ خالدہ ذہین ہے، گڈ ہے، بٹ تفضیل بعض رابعہ خالدہ سے ذہین ہے، یہاں پہ بیٹر ہے، اور نفیسہ سب سے ذہین ہے یعنی بیسٹ ہے۔ ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفضیل نفسی وہ صفت جو موصوف کی ذات پر ختم ہو جائے اور کسی دوسرے سے اس کا مقابلہ نہ ہو، تفضیل نفسی کہلاتا ہے۔ تفضیل بعض وہ صفت جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو کسی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دے، تفضیل بعض کہلاتا ہے۔ اور تفضیل کل وہ صفت جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو دوسرے تمام لوگوں یا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دے، تفضیل کل کہلاتی ہے۔ نمبر 3 صفت نسبتی۔ صفت نسبتی وہ اسم صفت ہے جو 2 اسموں کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے، تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قندھاری انار بہت میٹھا ہوتا ہے، ایرانی قالین بہت قیمتی ہوتا ہے، نیلی بار کی بھینسیں بہت دودھ دیتی ہیں۔ مندرجہ والا مثالوں میں میٹھے انار کی نسبت قندھار سے بتائی گئی ہے، قالین کی نسبت ایران سے ہے، بھینسوں کی نسبت نیلی بار سے ہے۔ اس طرح کی نسبت کو ہم صفت نسبتی کہتے ہیں۔ صفت عددی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صفت عددی سے مراد وہ صفت ہے جس میں گنتی کو ظاہر کرنے والے اسم استعمال کی۔ مثال کے طور پر خالد کے پاس 1000 روپے ہیں، سمیرہ 5ویں جماعت میں پڑھتی ہے، یہ وزن خالدہ سے دوگنا ہے، میرا گھر خالد سے 4تھے نمبر پر ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں 1000، 5ویں، دوگنا، چوتھے یہ ایسے اسم جو گنتی کے ہندسے یا ہندسوں کی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی عدد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے اسم کو ہم اس میں صفت عددی کہتے ہیں۔ صفت مقداری۔ مقدار جو اس میں اسماء صفت کسی قسم کی مقدار کی طرف اشارہ کریں انہیں صفت مقداری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس قدر گرمی ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، مہربانی کر کے مجھے تھوڑی سی چینی دے دو، جتنی چادر ہو اتنی پاؤں پھیلاؤ، چائے کے لیے سیر بھر دودھ کافی ہوگا۔ یہ اوپر دیے گئے جملوں میں اس قدر، تھوڑی سی، جتنی، اتنے اور سیر بھر یہ ایسے الفاظ ہیں جو مقدار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں صفت مقداری کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 حاصل مصدر۔ حاصل مصدر جو اس میں مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جائیں وہ حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ جیسے بچانا سے بچت، ملانا سے ملاوٹ، چمکنا سے چمک۔ یہ حاصل مصدر بنانے کے بھی کچھ قاعدے ہیں۔ مصدر کا آخری حرف الف دور کر دینے سے، مثلاً جلنا سے جلن، تھکنا سے تھکن۔ مصدر کی علامت نا کو دور کر دینے سے بھاگنا سے بھاگ اور چمکنا سے چمک۔ نا دور کر کے الف لگا دینے سے جھگڑنا سے جھگڑا، گھیرنا سے گھیرا۔ پھر نا دور کر کے آخر میں یہ لگا دینے سے ہنسنا سے ہنسی اور جھڑکنا سے جھڑکی۔ نمبر 5 نا دور کر کے آخر میں وٹ لگا دینے سے سجانا سے سجاوٹ، بنانا سے بناوٹ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6 نا دور کر کے آخر میں ہٹ لگا دینے سے مسکرانے سے مسکراہٹ، گھبرانا سے گھبراہٹ، اور نا دور کر کے آخر میں حمزہ ای لگانے سے پڑھنا سے پڑھائی اور کمانا سے کمائی وغیرہ وغیرہ۔ یہ حاصل مصدر بنانے کے قاعدے ہیں۔ یہاں پر اہم بات بتانے کے لیے ہے کہ فارسی کے بہت سے حاصل مصدر ایسے ہیں، مصدر بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا گزارش، آزمائش، کوشش، آسائش، ستائش، رفتار، گفتار، جستجو، گفتگو وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کیفیت حاصل مصدر کا دوسرا نام، اس میں کیفیت بھی ہے۔
حاصل مصدر اور اس میں کیفیت میں فرق کیا ہے؟ حاصل مصدر اور اس میں کیفیت میں یہ فرق ہے کہ حاصل مصدر مصدر سے بنتا ہے مگر اس میں کیفیت اسم سے بنایا جاتا ہے، مثلا بندہ سے بندگی، شریف سے شرافت، کثیف سے کثافت وغیرہ۔ اس میں کیفیت بنانے کے قاعدے، اس میں کیفیت بنانے کے قاعدے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسم کے آخر میں یہ لگانے سے، جیسے سرد سے سردی، سخت سے سختی۔ اسم کے آخر میں ہے ہو تو اسے گاف سے بدل کر یہ لگاتے ہیں، مثلا بندہ سے بندگی، زندہ سے زندگی، دیوانہ سے دیوانگی۔ نمبر 3، اسم کے آخر میں پن لگانے سے، مثلا علی پر ختم ہونے والے اسم کے آخر میں یہ لگانے سے، مثلا پن لگانے سے، لڑکا سے لڑکپن، بےہودہ سے بےہودہ پن، بچہ سے بچپن، اور گدھا سے گدائی، خدا سے خدائی، دانا سے دانائی وغیرہ وغیرہ۔ اوپر کے مثالوں میں امید کرتے ہیں کہ آج اس میں نکرہ کے تعلق سے جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جتنی چیزوں کو جاننے کی کوشش کی ہے وہ ذہن نشی ہو جائے اور مقابلہ جاتی امتحانات میں اچھے مارکس حاصل کرنے میں مددگار ہوں۔